की स्टार्ट करा. फर्स्ट प्रेझेंटर, सेकंड मेहकचं असेल. मॅडम हॅलो. हॅलो मॅडम. हा बोला. आवाज येतोय मॅडम? हो हो आवाज येतोय. व्हिडिओ आणि ऑडिओ दोन्ही ऑन केलं तरी चालणार आहे. तू जशी कम्फर्टेबल आहेस, तुला जर व्हिडिओ ऑफ करायचा असेल ऑफ कर, ऑन करायचा असेल ऑन केलास तरी चालेल. ओके. हा स्टार्ट करू मॅडम? हो हो चालेल, स्टार्ट करा. Hello all, I am Kirti Malgunkar from TY BCom class. Today I am going to inform you about Frederick Winslow Taylor, that means F.W. Taylor. Taylor was born in 20 March 1856 to a Quaker family in Philadelphia, Pennsylvania, US. Taylor's father, lawyer, built his wealth on mortgage. Taylor's mother, Emily Annette Taylor, was an ardent abolitionist and co-worker with Lucretia. Taylor's education, Taylor studied 2 years in France and Germany and traveled 18 months from Europe. In 1872, Taylor entered Philip Exeter Academy, New Hampshire with a plan, eventually going to Harvard and becoming a lawyer like his father. In 1874, Taylor passed Harvard entrance examination with honors. Taylor an apprentice pattern maker and machinist. He left his apprenticeship for 6 months and represent a group of New England machine tools manufacturers. In 1878, Taylor finished his 4 years apprenticeship and he was a quickly promoted time clerk, journeyman mechanist, gang boss over the lathe hand, machine shop foreman, uh, research director, chief engineer. In 1879, Taylor Taylor studied and analyzed the productivity of men and machines. In 1881, Taylor and Clarence Clark won first tennis double tournament in US National Championship. In 1883, Taylor became a student of Stevens Institute of Technology and obtaining a degree of mechanical engineer. In 1884, Taylor in 1884, Taylor married with Lausie M. Spooner in Philadelphia. In 1890 to 1893, Taylor worked general manager and consulting manager. In 1893, uh, Taylor opened independent consulting practice in Philadelphia. In 1895, Taylor first paper, A Piece Rate System, was presented at American Society of Mechanical Engineers. In 1898, Taylor joined Bethlehem Steel to serve machine shop capacity system. Between 1898 to 1900, Taylor conducted empirical tests and concluded tungsten alloyed steel double cutting speed. In 1906, Taylor awarded Doctor of Science. In 1911, Taylor introduced Principle of Scientific Management paper. The principle of scientific management are rule of thumbs, section of work and division of work and cooperation. In 1915,
Taylor was died 21 March 1915, one day after his 59th birthday. Thank you. Thank you so much, Kirti. Very good presentation. And जे काही प्रेझेंटेशन होतं खूप छान होतं आणि मेथड ऑफ प्रेझेंटेशन इज ऑल्सो गुड. सो थँक्यू सो मच. सो आपले सेकंड प्रेझेंटर Thank you, असणार ma'am. आहेत मेहक पठाण. सो आय विल शेअर हिअर युअर प्रेझेंटेशन. Mehak, are you hearing? Yes, ma'am. Okay, so start karo. Good morning, all. I am Mahek Pathan from SY BCom. My topic for today's competition is Philip Kotler. Today I can tell you about them. Hope you will listen carefully. So, who is Philip Kotler? Philip Kotler, born in 27th May 1931, he is an American marketing author, consultant and professor. फिलिप कॉटलर 27 मई 1931 में पैदा हुए. वो एक अमेरिकी मार्केटिंग ऑथर मतलब लेखक, कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर थे. He is also known around the world as the father of modern marketing for his constant efforts and hard work in the area of marketing, and his marketing management theories, decision-making unit, and 5 product levels. वो पूरे दुनिया भर में फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग के नाम से जाने जाते थे. उन्होंने इस फील्ड में बहुत ही मेहनत की है और अपने हार्डवर्क की वजह से उन्होंने ये मकाम पाया है. He is also known for popularizing the definition of marketing mix. वो मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन को पॉपुलराइज करने के लिए भी जाने जाते थे. For over 15 years, he has taught at the Kellogg School of Management at Northwestern University. वो कई 50 साल से कैलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि नॉर्थर्न वेस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ा रहे हैं. Kotler's book Marketing Management is the most widely used textbook in marketing around the world. कॉटलर की जो बुक थी मार्केटिंग मैनेजमेंट वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मार्केटिंग की बुक्स है. उनकी फैमिली ही हैज 2 brothers मिल्टन एंड लेट नेल कॉटलर. उनके 2 भाई थे, एक का नाम था मिल्टन एंड दूसरे थे लेट नील कॉटलर जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे. Then Philip met Nancy at Harvard and they married in 1955. फिलिप है वो अपनी बीवी से हार्वर्ड में मिले और उन लोग ने 1955 में शादी की. They have 3 daughters, Amy, Melissa and Jessica. उनके 3 लड़कियां थी, एमी, मेलाइसा एंड जेसिका, और अब उनके 9 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं. And now they have 9 grandchildren. Education. Both of Kotler's parents, Patty and Maurice, immigrated in 1917 from Russian Empire and settled in Chicago. He was born in Chicago. But कॉटलर के जो पेरेंट्स थे बैटी और मॉरिस वो 1917 में रशियन एम्पायर से शिकागो में शिफ्ट हुए और कॉटलर वहीं पर शिकागो में पैदा हुए. He studied at DePaul University for 2 years and after that accepted without bachelor's degree in master's program at University of Chicago in 1953. वो DePaul यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक्सेप्ट किया गया, वो भी बिना बैचलर डिग्रीज के मास्टर प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1953 में. He received PhD degree in economics from Massachusetts Institute of Technology in 1956, earning both degrees in economics. उन्होंने PhD MIT जो कि है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से रिसीव की और उन्होंने 2 डिग्रीज इकोनॉमिक्स की 1956 में हासिल कर ली. Then he studied under 3 Nobel laureates in economic science.
जो हमारे 3 नोबेल लॉरियट्स थे इकोनॉमिक साइंस के, जैसा कि हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिक्स के बड़े, जिन्होंने हमें सब इकोनॉमिक साइंस का बताया, उनके नीचे उन्होंने पढ़ाई की, जो कि है मिल्टन फ्रीडमैन, पाल सिमुलसन एंड रॉबर्ट सोलो. He did a year of postdoctoral work in mathematics in Harvard University in 1960. उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 में पोस्ट डॉक्टरल का वर्क किया मैथमेटिक्स में, एंड बिहेवियरल साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन 1961. और उसके बाद उन्होंने बिहेवियरल साइंस का जो पढ़ाई होती है वो की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में 1961 में. Also, he received honorary degrees from 22 universities, including Stockholm University, University of Economic and Business, etc. उन्होंने इन सब डिग्रियों को पकड़कर 22 डिग्रियां अलग अलग यूनिवर्सिटी से हासिल की, जिसमें स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस भी शामिल है. नेक्स्ट, व्यूज अबाउट मार्केटिंग. इसके बाद हमारा पॉइंट है उनके व्यूज जो उन्होंने मार्केटिंग के बारे में हमें बताए. He believes that marketing was an essential part of economics, and said demand is influenced not only by price but also by advertising, sales promotion, sales forces, and various middlemen like agents, retailers, wholesalers, etc., operating as sales and distribution channel. उनका ये मानना था कि जो मार्केटिंग है वो इकोनॉमिक्स का एक इसेंशियल पार्ट है और डिमांड सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, वो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन और सेल्स फोर्सेस जैसे कि डिमांड फोर्सेस, सप्लाई फोर्सेस जो कि हम भी बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन वगैरह के जरिए होती है, और वेरियस मिडलमैन के जरिए भी वो इफेक्ट होती है जैसे कि एजेंट्स, रिटेलर्स एंड होलसेलर, और ये एक सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम करते हैं. Also, he believes the marketing purpose of elevating consumer well-being has to put at the heart of company's strategy and be practiced by all managers. और उनका ये मानना भी था कि मार्केटिंग सिर्फ कंज्यूमर के वेलबींग के ऊपर ही है, मतलब ये जो कंपनी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि पूरे मैनेजर्स के जरिए चलाई जानी चाहिए कि कंज्यूमर्स को हम सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए. कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन is the only aim of business, ऐसा उनका मानना था. Then next point, writing and activity. Philip Kotler is the author of over 150 published articles and 80 books, including Principles of Marketing, Marketing for Hospitality and Tourism, Social Marketing, and many more. जो फिलिप कॉटलर थे उन्होंने 150 से ज्यादा पब्लिश किए आर्टिकल्स और उसके बाद 80 से ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखी, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो कि उनकी सबसे फेमस बुक है, उसके बाद मार्केटिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मतलब मेहमान नवाजी, एंड टूरिज्म मतलब जो हम टूरिस्ट कहते हैं, टूरिज्म मतलब हम कहीं जाते हैं तो उनके टूरिज्म सियाहत कहते हैं उन्हें, उसे उर्दू में. देन सोशल मार्केटिंग एंड मैनी मोर. इन सभी टॉपिक्स पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. हिज रिसर्च कवर्स स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, कंज्यूमर मार्केटिंग, प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स. और उन्होंने कई रिसर्च भी की जिसमें उन्हें स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग, कंज्यूमर मार्केटिंग, ग्राहक मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए मार्केटिंग की, प्रोफेशनल मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, ई मार्केटिंग के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने कई रिसर्च की और वो शाया भी की. He has been a consultant in IBM and AT&T Bank of America, Merck, Ford, General Electric and others. उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों में कंसल्टेंट का काम किया जिसमें IBM, AT&T बैंक ऑफ अमेरिका, मर्क, फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कई और भी कंपनियां शामिल हैं. He has lectured several times in Italy, Sweden, China, Japan, India and many other countries. उन्होंने बहुत बार लेक्चर्स दिए हैं इटली में, स्वीडन में, चाइना में, जापान में और बहुत सारी और भी देशों में उन्होंने लेक्चर दिए हैं. अब हम उनके ऑनरेबल डिस्टिंक्शंस जो कि उन्हें अवार्ड्स मिले हैं वो उनके बारे में बात करेंगे.
The Financial Times on November 18, 2005 surveyed 1,000 executives in 25 countries about the most influential business writers, management gurus, and Kotler ranked fourth. जो फाइनेंशियल टाइम्स जो पब्लिश हुआ था नवंबर 18, 2015 को, उन्होंने जो सर्वे किया था 1000 एग्जीक्यूटिव्स 25 कंट्रीज का कि कौन सबसे ज्यादा मैनेजमेंट गुरुज या इन्फ्लुएंसर बिजनेस राइटर है, उसमें कॉटलर ने फोर्थ रैंक किया था, चौथा स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद इन 2007 कॉटलर was appointed a special ambassador at large for Indonesian tourism. 2007 में कॉटलर को स्पेशल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इंडोनेशियन टूरिज्म का। और नवंबर 7, 2013 में कॉटलर रिसीव बैज ऑफ ऑनर ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर। उन्हें बैज ऑफ ऑनर मिला नवंबर 7, 2013 में, जो कि फ्रांस के तहत रखा जाता है और दिया जाता है 19वीं सेंचुरी से। On November 19, 2013, Kotler was inducted into the Management Hall of Fame along with 10 other gurus. नवंबर 19, 2023 में कॉटलर को मैनेजमेंट हॉल ऑफ फेम, जो कि एक फेम होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े गुरुज को टॉप 10 गुरुज को जगह मिलती है, उनमें उनका नाम था नवंबर में, और उन्हें उस जगह पे शामिल किया गया था। He is the 16th in the list of world's top management professionals and the only marker in 1st March and 2014. उन्हें 16वां स्थान मिला था वर्ल्ड्स टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल और मार्कर में। In 2020, Kotler was third guru in management in the top 13 gurus of management. टॉप 13 गुरुज ऑफ मैनेजमेंट जब निकाला गया 2020 में, तो उनको थर्ड रैंक मिला था। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर उनके कुछ कोटास मेंशन किए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में भी एक कोटा देख सकते हैं। The sales department isn't the whole company, but the whole company better be the sales department. वो कहते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट पूरी कंपनी नहीं होती, बट जो कंपनी होती है वो पूरा के पूरा सेल्स डिपार्टमेंट होता है। देन फर्स्ट क्वार्टर, द बेस्ट एडवर्टाइजिंग इज डन बाय सेटिस्फाई कस्टमर्स। उनका कहना था कि जो बेस्ट एडवर्टाइजिंग होती है वो सेटिस्फाई कस्टमर्स की होती है। जैसा कि आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट जिसने यूज किया वो उनके सेटिस्फाइड कस्टमर्स को लाते हैं, तो उनका भी मानना ये था कि जो बेस्ट एडवर्टाइजिंग होती है वो सेटिस्फाई कस्टमर की वजह से होती है। सेकेंड, टुडे यू हैव टू रन फास्टर टू स्टे इन प्लेस। वो कहते हैं कि अभी अगर तुम्हें जगह पर अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें आज तेज भागना पड़ेगा। Then third, the major cause of company's failure is company's success. वो कहते हैं कि जो कंपनी फेलियर का कारण होता है वो कंपनी की सक्सेस होती है, यानी कि कभी कभी कामयाबी भी इंसान को डुबा देती है। Good companies will meet needs and great companies will create market. वो कहते हैं अच्छी कंपनी सिर्फ लोगों की जरूरत पूरी कर सकती है, और जो बढ़िया कंपनी होगी वो मार्केट को बनाएंगी। Fifth, every business is a service business. Does your service put a smile on the customer's face? वो कहते हैं हर बिजनेस एक सर्विस होती है, क्या तुम्हारी सर्विस किसी कस्टमर्स के फेस पर स्माइल ला सकती है? Some contribution of Kotler. In 2003, the Financial Times cited Kotler's 3 major contribution to marketing and to management. उनके कुछ contribution थे जो उन्होंने marketing के लिए किए थे, वो 2003 में Financial Times ने यहाँ पे mention किए हैं। First, he has done more than any other writer or scholar to promote the importance of marketing. उन्होंने बाकी कई और बहुत सारे राइटर्स और स्कॉलर से ज्यादा इम्पोर्टेंस मार्केटिंग को दिया है और हमें मार्केटिंग के बारे में बहुत गहरी और अच्छी नॉलेज प्रोवाइड किया है। ट्रांसफॉर्मिंग इट फ्रॉम अ फेरिकल एक्टिविटी bolted on to the more important work of production. उन्होंने न सिर्फ मार्केटिंग को एक फेरिकल एक्टिविटी करके रख दिया, बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस बता के उसको वर्क ऑफ प्रोडक्शन में कैसे यूज करते हैं वो सब बताया।
लाइक थेरोटिकल से हमें उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया. Second, he continued a trend started by Peter Drucker, shifting emphasis away from price and distribution to a greater focus on meeting customers' need and on the benefits received from a product or service. इन्होंने पीटर ड्रकर को फॉलो करते हुए जो भी प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन का फोकस था वो कस्टमर नीड्स और उनके बेनिफिट की तरफ मोड़ दिया. उनका ये कहना था कि प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा कस्टमर्स की क्या नीड है, उन्हें प्रोडक्ट की सर्विस और क्वालिटी वगैरह उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. Third, he has broadened the concept of marketing from more selling to a general process of communication and exchange. उन्होंने जो मार्केटिंग का कंसेप्ट था उसको न सिर्फ सेलिंग तक रखते हुए उसे जनरल पर्पस किया, कम्युनिकेशन और एक्सचेंज का, and has shown how marketing can be extended and applied to charities, museum, performing arts organization, political parties and many other non-commercial situation. और उन्होंने हमें ये भी शो करके बताया कि मार्केटिंग सिर्फ मार्केट तक ही नहीं सीमित है बल्कि चैरिटी, म्यूजियम्स, आर्ट्स वगैरह के जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, आर्ट्स वगैरह के परफॉर्मेंस होते हैं, आर्ट्स एग्जीबिशन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे नॉन कमर्शियल सिचुएशन में भी हम मार्केटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं वो उन्होंने हमें बताया. उन्होंने हमें बहुत सारी मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी. थैंक यू. थँक यू. महक, गुड प्रेझेंटेशन. बाकीचे आपले प्रेझेंटर आहेत आज कल्चरल साठी सुद्धा गेलेले आहेत, त्यामुळे काही स्टुडंटचे मेसेज आले ते तिकडे आहेत. ओके, सो